Hello, good morning, student. Today I am going to teach you next topic of the grammar clauses. The meaning of the clause is उपवाक्य. हिंदी meaning of clause is हिंदी में कहते हैं इसको उपवाक्य. First of all, we know that what is clause. A clause is a group of words that forms part of a sentence and has a subject and a finite verb of its own is called clause. Once more, we will write here a clause is a group of words that forms part of a sentence and has a subject and a finite verb. Finite verb means main verb. A finite verb. The meaning of finite verb is main verb. Of its own, अपने आप में इसकी of its own means, आप इसको पूरा समझ लीजिएगा. अ क्लाउज इज अ वर्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स. कह रहा है कि उपवाक्य एक शब्दों का ऐसा समूह है दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस. दैट फॉर्म्स क्या बना, तो सेंटेंस का एक पार्ट बनाता है या पार्ट होता है, और उसका एक इस क्लाउज का एक सब्जेक्ट होता है, और उस सब्जेक्ट कह रहे एंड हैज़ अ सब्जेक्ट, उसका एक सब्जेक्ट होता है, एंड अ फाइनाइट वर्ब. फाइनाइट वर्ब मीन्स मेन वर्ब. अपने आप में इसकी एक सब्जेक्ट भी होता है और इसकी एक मुख्य क्रिया. मेन वर्ब मीन्स होता है मुख्य क्रिया. फाइनाइट वर्ब मीन्स मेन वर्ब. इट मीन्स इसकी मुख्य क्रिया भी होती है अपने आप. उसको कहते हैं क्लाउज. एग्जाम्पल यू कैन अंडरस्टैंड थ्रू द एग्जाम्पल. I lost a blue pen. You can write here, I lost a blue pen. So a blue pen, it is a part of a sentence. It is called clause. And number 2, इसी पे आप बेस्ड क्वेश्चन सेंटेंस और बना सकते हैं. I lost a pen. I lost a pen which is blue in color. उसी पे बेस्ड which is blue in color. Now you will know that in sentence number first, the group of words principal. कह रहे the group of words printed in bold letter, blue letter. ये जो आपको लिखा है in first sentence, the group of words a blue pen, written in a blue pen, I have underlined it. A blue pen forms a phrase. A blue pen forms a phrase because it does not have a finite verb. इसमें कोई finite verb नहीं. और in sentence 2, the group of words, इसमें which is blue in color. Which is blue in color, I have also underlined it. Which is blue in color has a finite verb. Has a finite verb is. इसकी finite verb क्या है? Is. And a subject which it is called a clause. इसमें subject भी है और verb भी है, इसलिए इसको कहा गया है clause. ये 2 एग्जाम्पल आपके पास है. Once more you can understand that a clause is a group of words that forms part of a sentence and has a subject and finite verb of its own. Through the example you can understand of it. कभी भी अगर आप सेंटेंस किसी भी टॉपिक को आपको समझना है तो उसके एग्जाम्पल पे सबसे पहले फोकस करें. ये आप एग्जाम्पल को लिखने के बाद, उसको पढ़ने के बाद, उसको समझने के बाद आपको जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है क्लाउज के बारे में, क्लाउज क्या है, वो आपकी समझ में क्लियर आ जाए. इसलिए इसके जो कुछ
फीचर्स होते हैं, उस कंडीशन होती है, वो तभी आपकी समझ में आएंगी। व्हेन यू विल नो, यू विल रीड एग्जांपल्स ऑफ द टॉपिक क्लियरली। ओके, नाउ you can write more and more example regarding of clouds. Now I am just going to teach you about types of clouds. Now types of clouds, इसके क्या क्या टाइप्स। नंबर 1, नाउन क्लाउड्स। Noun clouds. Yesterday I had taught you about phrase. In the same way, there are types of the phrases: noun phrase, adverb phrase, and adjective phrase. Today I'm just teaching you about clause, its definition, and types of the clause. Noun clause. What is noun clause? A clause that performs the function of a noun. जो clause sentence में कह रहे a clause that performs, जो क्लाउज जो उपवाक्य परफॉर्म करता है किसका, फंक्शन ऑफ नाउन इन अ नाउन क्लाउज। नाउन क्लाउज में जो कह रहा है, जो क्लाउज नाउन का फंक्शन परफॉर्म करता है उसको नाउन क्लाउज कहते हैं। राइट हियर, व्हाट इज नाउन क्लाउज? अ क्लाउज दैट परफॉर्म्स, सिंपल डेफिनेशन इज हियर, अ क्लाउज दैट performs the function of a noun, simple, is a noun clause. Once more, a clause that performs the function of a noun. A clause that performs the function of a noun. जो क्लाउज, जो वाक्य नाउन का फंक्शन परफॉर्म करता है उसको नाउन क्लाउज कहते हैं। सेंटेंस में जो क्लाउज, जो उपवाक्य नाउन का फंक्शन परफॉर्म करेगा, नाउन का कार्य करेगा, उसे कहेंगे नाउन क्लाउज। अ क्लाउज दैट परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड नाउन क्लाउज। For the example, let's see the example. Number 1, he thought that his dog was lost. Example is given here. He thought that his dog was lost. He thought of a new plan. You can make more and more sentence regarding of more examples regarding of noun clause. Number 1, he thought that his dog was lost. His dog was lost. That is the sentence. So the group of words that his dog was lost is a clause, since it has a subject is dog. Subject his dog, or a finite verb was. Was is finite verb और his dog is subject. तो द कहा ही वो इस क्लाउज का मीनिंग ही वही बताया आपको। द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हिज डॉग वाज लॉस्ट इज अ क्लाउज. इट हैज अ सब्जेक्ट एज वेल एज इट हैज अ फाइनाइट वर्ब आल्सो. ये जो सेंटेंस आपको बताया गया, तो क्लाउज आंसर्स क्वेश्चन जब आपके थॉट व्हाट किसके बारे में सोचता है, इट मीन्स दैट it is acting as the object of the verb thought, thought, and doing the work of the noun. noun का काम कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे we can say that, हम कह सकते हैं the clause is a noun clause. ये क्या है, noun clause. Once more here, she thought of a new pen. तो of a new pen in the sentence
द ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ऑफ अ न्यू पेन, ये किसका क्या एक्ट कर रहा है, क्या एक्ट करता है, एक्ट्स एज अ नाउन एज इट आंसर द क्वेश्चन थॉट व्हाट, बट इट डज नॉट हैव अ फाइनाइट वर्ब, इसमें फाइनाइट वर्ब नहीं है और सब्जेक्ट नहीं है, सो इट इज़ अ नाउन फ्रेज, इसको हम कह सकते हैं नाउन फ्रेज में नाउन फ्रेज, और ऊपर जब क्लियर दिया है उसमें फाइनाइट वर्ब भी है और सब्जेक्ट है वो है नाउन क्लाउज, तो दोनों में डिफरेंस पता चल जाता है इसमें कि कौन नाउन का। अब इसी को किस तरीके से हम लिख सकते हैं, जो हमको इसको उसमें बनाना होगा, किसमें, इसको हमको क्लाउज में बनाना होगा, तो उसको कैसे करेंगे, जैसे आप वन एग्जांपल और ले लीजिए, यू कैन हियर टेक द एग्जांपल, राम एक्सपेक्टेड, राम एक्सपेक्टेड टू सक्सीड, ये अपने राम एक्सपेक्टेड टू सक्सीड इज अ फ्रेज, इट इज नाउन फ्रेज। और इसी को अगर हम दूसरे तरीके से बोलेंगे कि राम एक्सपेक्टेड दैट ही वुड बी सक्सेसफुल, ही वुड बी सक्सेसफुल, तो दैट ही वुड बी सक्सेसफुल, इट हैज also subject and also verb, it is called noun clause। ये सिंपल सा इसके टाउस में कि नाउन क्लाउज किसे कहते हैं, सिंपल, इट इज अ सिंपल लैंग्वेज, नाउन क्लाउज दैट परफॉर्म अ फंक्शन ऑफ नाउन, इट इज कॉल्ड नाउन क्लाउज। अगर सेंटेंस, अ सेंटेंस में कन्वे द सेम मीनिंग बाय यूजिंग अ फ्रेज और अ क्लाउज, बट द मेन डिफरेंस क्या है दोनों में, कह रहा है कि कोई भी सेंटेंस है वो कन्वे कर सकता है सेम मीनिंग, चाहे उसको आप फ्रेज के रूप में यूज करो या क्लाउज के रूप में करो, लेकिन उनमें एक डिफरेंस होगा बिटवीन अ फ्रेज एंड क्लाउज, क्या होगा कि अ फ्रेज डज नॉट हैव अ फाइनाइट वर्ब, फ्रेज में फाइनाइट वर्ब नहीं होगी, अ फ्रेज डज नॉट हैव अ सब्जेक्ट, फ्रेज में सब्जेक्ट नहीं होगा, जबकि जो क्लाउज है उसमें सब्जेक्ट भी होगा और उसमें फाइनाइट वर्ब भी होगी। अ नाउन क्लाउज परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन इन सेंटेंस में, कह रहा है कि कई फंक्शन इसमें करता है नाउन क्लाउज, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, और प्रीपोज इसमें किस कह सकते हो ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन, तो अलग अलग डिफरेंस है इसमें, अलग अलग आपको परफॉर्म करके दिखा सकता है, लेकिन आपको जो आपके सिलेबस में बताया गया है कि आपको टाइप्स आपको बताने हैं, और ये इसका नाउन क्लाउज है। उसके बाद जो नेक्स्ट इसका वो आ जाएगा, थोड़ा सा आप इसके थोड़ा फीचर भी देख सकते हो नाउन क्लाउज के, नाउन क्लाउज के जो फीचर्स हैं उसमें मैं एक दो फीचर्स लिख लेता हूँ, देख लीजिए, उसमें फीचर से थोड़ा क्लियर हो जाएगा आपको। वो सिंपल सा है कि अ नाउन क्लाउज परफॉर्म द फंक्शन ऑफ अ नाउन, तो इसमें दो तीन चीज़ें हैं कि नाउन क्या करता है, नाउन क्लाउज एक्ट्स एज द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, देखो नाउन क्लाउज एक्ट्स, क्या एक्ट्स करता है, एज द सब्जेक्ट या और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन, जिसको भी ये एक्ट करता है, एंड इन्फिनेटिव, और अ पार्टिसिपल। इतने जो इसमें टॉपिक दिए हैं इन सबको उसी कह रहे हैं कि इट एक्ट्स मीन्स नाउन क्लाउज एक्ट्स द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, वर्ब का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को क्या एक्ट को एक्ट कह रहा है कि इट एक्ट्स एज, किसकी तरह, नाउन क्लाउज वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करता है, किसी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करता है, इन्फिनिटिव की तरह एक्ट करता है, पार्टिसिपल की तरह एक्ट करता है। और नंबर 2 फीचर्स है इसका, नाउन क्लाउज में बी इंट्रोड्यूस्ड, सीधी सीधी है कि नाउन क्लाउज में बी
इंट्रोड्यूस मीन्स होता है परिचय कराता है, इंट्रोड्यूस, नाउन क्लाउज मे बी इंट्रोड्यूस बाय दैट, किसे, दैट किससे शुरू होता है, इफ, और इसके बाद आप और भी जैसे वाई, हाउ, वेदर एंड सो ऑन, इस तरीके से। तो ये सब वर्ड है, हाउ, वाई, वेदर, दैट, इफ। तो इट में नाउन क्लाउज मे बी इंट्रोड्यूस बाय, किससे, नाउन क्लाउज किससे इंट्रोड्यूस होता है, कौन कहाँ कहाँ से कैसे स्टार्ट होता है, जैसे दैट से होगा, इफ से होगा, वेदर से होगा, वाई से होगा, हाउ से होगा, ये सब इसके कंडीशन में। तो इस तरीके से ये अब आपका जो नाउन क्लाउज है ये क्या हुआ, पूरा हुआ। उसके बाद जो नेक्स्ट क्लाउज आपके पास है एडजेक्टिव क्लाउज, एडजेक्टिव क्लाउज। एडजेक्टिव क्लाउज किसे कहते हैं, वही है जैसे नाउन के बारे में आया कि अ क्लाउज दैट परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ अ नाउन। इसमें क्या है, एडजेक्टिव में भी वही होगा जो किसका क्या परफॉर्म करेगा, रोल ऑफ एन एडजेक्टिव इन सेंटेंस, उसको कहेंगे हम क्या, एडजेक्टिव क्लाउज। सिंपल लैंग्वेज जैसे फ्रेज का है वही लैंग्वेज इसका है, बस उसमें नाम फ्रेज दे दिया, इसमें नाम क्लाउज दे दिया। अ क्लाउज दैट परफॉर्म्स, सीधी सी बात है, दैट a clause that performs, क्या परफॉर्म करता है, द रोल ऑफ एन एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस इज एन एडजेक्टिव क्लाउज। अ क्लाउज दैट परफॉर्म्स, ऐसा उपवाक्य जो परफॉर्म करता है, टू रोल ऑफ एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का रोल अदा करता है, परफॉर्म करता है सेंटेंस में, उसको हम एडवर्ब क्लाउज कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, एडजेक्टिव क्लाउज कहते हैं। क्यों, कि वो अ क्लाउज दैट परफॉर्म्स रोल ऑफ एन एडजेक्टिव, सेंटेंस में किसका रोल परफॉर्म करता है, एडजेक्टिव का। एग्जाम्पल के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम्पल क्या है और किस तरीके से उसको आप, थ्रू द एग्जाम्पल यू कैन अंडरस्टैंड ऑफ द more about the adjective clause. We are looking for a puppy, जैसे आपने बोला we are looking for a puppy which has white dots। तो ये जो which has white dots ये अपने आप में क्लाउज है, क्योंकि it has a subject which और फाइनल वर्ब इसमें है। तो देखो उसको एग्जाम्पल देख लीजिए इसमें, लेट्स सी द एग्जाम्पल। वी लिख सकते हो आप, आर लुकिंग, सेंटेंस कुछ भी बना लो आप, फॉर अ पपी, जिसमें आपको ये लगे कि इसमें हम एडजेक्टिव क्लाउज को यूज कर सकते हैं। और यहाँ से शुरू होगा ये विच से, विच हैज वाइट, WHIT, वाइट डॉट्स। तो विच हैज वाइट डॉट्स, ये सब क्या है, वाइट डॉट्स। ये आप ये जो बनाई एडजेक्टिव क्लाउज में। तो द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज वाइट डॉट्स is a clause since it has a subject which, a finite verb has, or it acts as an adjective as it describe the noun puppy, किसको describe कर, puppy को describe कर रहा है, and is called an adjective clause। you can say, you can understand through the example। तो इस तरीके से आप इसको तो समझ सकते हो, और इसके और एग्जाम्पल भी आप बना सकते हो। जो एडजेक्टिव क्लाउज होता है उसको एडजेक्टिव क्लाउज इज प्लेस्ड एज नियर एज पॉसिबल टू द नाउन इट क्वालिफाइज, जिस नाउन को वो एडजेक्टिव फ्रेज क्या एडजेक्टिव क्लाउज क्वालिफाई करेगा उसके नियर ही उसको प्लेस किया जाता है।
वन मोर एग्जाम्पल आप देखिए समझ सकते हो, जैसे आप लिख सकते हो गीता इज द गर्ल हु इज wearing Gita is a girl who is wearing a pink dress, a pink dress. तो who is wearing a pink dress is an adjective phrase. Adjective clause, sorry, adjective phrase नहीं, adjective clause. Who is wearing a pink dress? ये डिस्क्राइबिंग द, इसको किसको किसको डिस्क्राइब कर रहा है? गर्ल, नाउन को. नाउन क्या है? गर्ल. कि गीता इज द गर्ल, गीता लड़की है. हु इज वेयरिंग ए पिंक ड्रेस, ने क्या पहन रखी है? पिंक ड्रेस पहन रखी है. तो ये हु इज वेयरिंग ए पिंक ड्रेस इज अ क्लाउज, एडजेक्टिव क्लाउज, जो किसको क्वालिफाई कर रहा है, किसको डिस्क्राइब कर रहा है? गर्ल को. गर्ल नाउन, गर्ल क्या है? एक नाउन. दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव क्लाउज. Dear Dad, listen and watch this video carefully. Try your best to understand the clause. Thank you.